Hello and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Bachelor's in Computer Science, second year semester 4 data structures. We are learning, we are on our second unit and we are learning queues. So in the previous videos we have discussed the procedures for insertion and deletion in the queues, also with some general issues with the procedures for general queues and the solution, and then the disadvantage of the solution. Okay, now today we begin various representation of queues. So there are various representation of queues. Following are some important representation of queues: circular queue, DQ and priority queue. There are three representations that can be done. We begin with our topic, circular queue. A circular queue, a general queue or a simple queue data structure suffers with one major defect that we have already discussed in our previous session. That is, what was the drawback? That when we are learning a general queue, what happens? See, this is a general queue. Now here when you do a deletion, these spaces become empty, but your rear end is still at the max level. Now children, if you try to enter something, although you have a free space here, you cannot enter anything here because you don't have a free space at the rear end. And in queues, it was very clearly said in earlier videos that insertion takes place only at the rear end. So this is a big disadvantage, that although you have a free space, you cannot enter data in queue. So that was a disadvantage of a general or a simple queue. And then we looked at the solution, that we can do one thing, we will be shifting these elements. And then we said that although shifting is one of the solution, but then shifting will be a time consuming process if we have a very lengthy queue. That was all discussed in previous video. So maybe circular queue will be a solution to this defect. A general queue or a simple queue data structure suffers from one major defect that was told to you. Shows that no insertion can be done in queue even when the first four locations on the left front are empty. Your front is empty, but only because of the condition that the insertion can take place only at the rear end, you cannot enter anything in spite of the free locations. Any addition to the queue will display the message queue is full or overflow. Again you have a screen here, you have a snapshot of some this. See, here in this queue you have 4 elements, you have 8 locations, so you can insert 4 more elements. But can you insert? No, you cannot insert because your rear is at max point. So whenever, because insertion takes place at rear end, you cannot enter. Front is 5, rear is end. The above problem can be covered through circular representation of a queue. So the solution will be a circular representation of a queue. In this representation, the pointer is reset to 1 as soon as front will exceed rear. So once you reach here, it can come to this point. A new element say F in circular queue shows in above figure will look as given below. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे you reach this point, you have one more element to check, and if you have a free location, तो front 5 है, rear 1 है, but क्योंकि ये circular queue है, आप यहाँ पे 1th position पे in circular fashion new element can be inserted in that way. If one more element comes, it will be inserted here, one more here, and then 5 will be your front, 4 will be your end, and it is kind of a circular queue, just like this. ठीक है, इसको सर्कुलर फैशन में इमेजिन कर लो. तो 8 के बाद वापस 1 आ रहा है, इसलिए इंसर्शन टेक प्लेस एट फर्स्ट पोजीशन. Now understood? Okay. Now we will be discussing an example to illustrate the working of a circular queue. See. Assume queue limit is 5 and initially queue is empty. We are taking a queue of limit 5 and initially we are assuming that our queue is empty, that is front is 0 and rear is 0. Now we are trying to insert 3 elements, that is P, Q and R are inserted. So first P will be inserted. Insertion takes place at rear. तो rear क्या है, front भी 0 है, rear भी 0 है, तो यहाँ insertion होगा. अब front 1 है, rear भी 1 है, तो insertion will take here. फिर फ्रंट 1 है, रेयर 2 है, तो 3 में नेक्स्ट इंसर्शन होगा. तो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू एंड आर, फ्रंट इज 1 एंड रेयर इज 3. नाउ पी का डिलीशन हो गया.
P डिलीट हो गया तो फ्रंट बन गया Q और रेयर हो गया 3. सी इट्स रिटन हियर, फ्रंट इज 2, रेयर इज 3. नाउ S एंड T आर इंसर्टेड. S रेयर एंड पे ही इंसर्शंस होते हैं तो S और T इंसर्ट हो गया. बट डोंट फॉरगेट इट्स अ सर्क्यूलर क्यू. ओके, तो फ्रंट इज 2 and rear is 5. Now one more element say Q and R, two more elements say Q and R are deleted. So Q deleted, R deleted, still front is 4 and rear is 5. U is inserted. अब यहाँ पे 3 लोकेशंस है. अगर ये जनरल क्यू होता तो आप U को कभी इंसर्ट नहीं कर पाते, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ सर्क्यूलर क्यू, 5 के बाद अगेन 1 आ रहा है सर्क्यूलर फैशन में, इसलिए नया इंसर्शन यहाँ होगा. फिर और समझो S इज डिलीटेड. अब ये डिलीट हो गया तो ये इट विल लुक लाइक दिस. नाउ T इज डिलीटेड, सो फ्रंट इज 1 एंड रेयर इज 1. एंड फाइनली U को भी डिलीट कर दो तो अगेन फ्रंट इज 0 एंड रेयर इज 0. You can go through this. This will tell you कि सर्क्यूलर क्यू में इंसर्शन और डिलीशन कैसे होता है. ठीक है, एक लुक फिर से ले लेते हैं इस टॉपिक पे. देखिए, ये एक नॉर्मल क्यू नहीं है, इट इज़ अ सर्क्यूलर क्यू. अज्यूम क्यू लिमिट इज़ 5 एंड इनिशियली क्यू इज़ एम्प्टी. हम मान लेते हैं कि हमारी क्यू की मैक्सिमम लिमिट 5 है और इनिशियली हमारा क्यू अभी एम्प्टी है. फिर P और Q और R इंसर्ट करने हैं. एक एक करके सोचते हैं. P को इंसर्ट करना है, फ्रंट 0 है, रेयर 0. इंसर्शन कैसे लेता है प्लेस? रेयर एंड पे. तो रेयर क्या है? 0. तो रेयर प्लस 1 में आप इंसर्शन कर रहे हो, दैट इज P को आपने इंसर्ट कर दिया. पहले जो रेयर था उसके बाद वाले पोजिशन पे इंसर्शन होता है. ठीक है, फिर रेयर बन गया 1 और फ्रंट भी 1. तो अब Q कहाँ आएगा? ओल्ड रेयर प्लस 1, यानी 1 + 1 2 नया रेयर है और उसमें Q आ जाएगा. अब फिर से एक एलिमेंट आया है तो फ्रंट इज 1 ओनली बट रेयर बिकम्स ओल्ड रेयर प्लस 1. तो 2 + 1 3 इज योर न्यू रेयर और फिर Q के थर्ड लोकेशन में नया इंसर्शन आ गया. अब नाउ यू डिलीटेड P. डिलीशन टेक्स प्लेस एट फ्रंट. तो P डिलीट हो गया तो फ्रंट इज 2 नॉट 1 नाउ एंड रेयर इज 3. Now S and T are inserted. तो फ्रंट इज 2, फिर पहले रेयर प्लस 1 4th पोजिशन पे S आएगा, फिर रेयर प्लस 1 5th पोजिशन पे T आएगा. Now your Q is basically not full but reached its maximum limit. So you are deleting Q and R. तो Q डिलीशन कैसे होता है? फ्रंट से होता है. तो पहले Q डिलीट होगा फिर R डिलीट होगा. तो फ्रंट इज 4 and रेयर इज 5. Now U is inserted. If it would have been a general queue, you cannot insert U. But it's not a general queue, it's a circular queue. तो फिर अब क्या होगा? अपडेट हो जाएगा. अपडेट कैसे होगा? 4th पोजीशन पे S है, 5th पोजीशन पे T है, वापस से सर्कुलर फैशन में अगर बनाएंगे तो 5 के बाद वापस 1 आएगा. तो फ्रंट इज 4 एंड रेयर बिकम्स ओल्ड रेयर प्लस 1. 5 + 1 इज इन सर्कुलर इट इज 1, अदरवाइज इट वुड हैव बीन 6. तो फिर U यहाँ इंसर्ट हो गया. फिर S को भी डिलीट कर दिया. फ्रंट तो 4 ही था तो डिलीशन S का होगा. फिर T डिलीट हो गया. चलो फ्रंट 5 था, रेयर 1 था, वो भी डिलीट हो गया. फाइनली U को भी डिलीट किया. एम्प्टी क्यू लुक्स लाइक दिस. ओके, सो नाउ वी बिगिन विद एन एल्गोरिथम टू इनपुट एन एलिमेंट इन ए सर्क्यूलर क्यू. द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज CQ इंसर्ट, जिसके 5 कंपोनेंट्स है. कंपोनेंट्स मीन्स पैरामीटर्स है. एक क्यू ऑब्वियस है, अगर आपको सर्क्यूलर क्यू में इंसर्शन करना है, किसी भी क्यू में इंसर्शन करना है रादर, तो आपको यू विल रिक्वायर अ क्यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन अ फ्रंट पॉइंटर that will indicate the front position of your queue, then a rear pointer that will indicate the rear position of your queue, item which has to be inserted, and max queue will be the maximum limit of your queue. Okay, so where q is the name of your array, front position of front item in the circular queue, rear position of the rear. You need, while writing an algorithm, name of the algorithm which should be relevant, parameters used in the algorithm, and then the description of the parameters. तो Q इज़ योर एरे, जिसमें Q बना है क्योंकि हम एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Q पढ़ रहे हैं, नॉट द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन. तो फिर एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Q में नेम ऑफ द एरे, फ्रंट में है पोजीशन ऑफ फ्रंट आइटम इन सर्कुलर क्यू, रेयर में है पोजीशन ऑफ रेयर आइटम इन सर्कुलर क्यू. आइटम क्या है? एन आइटम है जो सर्कुलर क्यू में हमें ऐड करना है, ऑब्वियसली इंसर्शन का एल्गोरिथम है. तो एंड मैक्स क्यू वो मैक्सिमम कैपेसिटी है इस क्यू की जहाँ तक आप एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो. दैट इज ऑफ द आइटम दैट कैन बी स्टोर्ड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ सर्कुलर क्यू. ठीक है,
नाउ द रियल एल्गोरिथम, द एक्चुअल एल्गोरिथम, वो भी एल्गोरिथम का पार्ट है बट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब सबसे पहले तो चेक कर लो कि फ्रंट नल तो नहीं है। अगर फ्रंट नल है दैट मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं है क्यू में। If front is null, that means you do not have even a single element in your queue. In that case, front को 1 बनाओ, rear भी 1। एक ही एलिमेंट है तो वही फ्रंट रहेगा, वही रेयर रहेगा, और जो भी रेयर रहेगा दैट पोजीशन पे आइटम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू और फ्रंट में आइटम भी डाल सकते हो, क्योंकि रेयर और फ्रंट तो एक ही है, बट नहीं डाल सकते बिकॉज बाय द डेफिनेशन इंसर्शन टेक्स प्लेस ओनली एट द रेयर पॉइंट, नेवर एट द फ्रंट। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा लॉजिकली, क्योंकि आप डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। मीनिंग सेम ही है, क्योंकि फ्रंट भी 1 है, रेयर भी 1 है, तो जाना वही है, उसी पॉइंट पे जाना है डेटा को, बट आप अपनी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको लिखना तो यही है कि क्यू के रेयर में आइटम को डालो। और क्योंकि फ्रंट नल था, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, तो इनिशियली एक ही बॉक्स यूज़ होगा और वही बॉक्स रहेगा फ्रंट, वही बॉक्स नहीं, वही लोकेशन रहेगा 1, वही लोकेशन रहेगा फ्रंट, वही लोकेशन रहेगा रेयर। अब मान लेते हैं एल्स पार्ट पे आइए। रेयर, ये सिचुएशन नहीं है, फ्रंट नल नहीं है। फ्रंट नल नहीं है तो क्या हो सकता है? फ्रंट नल नहीं है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो रेयर मॉड मैक्स क्यू प्लस 1। यहाँ पे ओवरफ्लो की तो कंडीशन ही नहीं आनी है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। हमने बोला यहाँ कभी ओवरफ्लो कब होगा, जब वो हाँ मैक्स क्यू कैपेसिटी पे है तो ओवरफ्लो तो होगा, बट अदरवाइज सामने अगर फ्री लोकेशंस है तो हम सर्कुलर फैशन में कंटिन्यूसली इंसर्शन कर सकते हैं, बस मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो रेयर मॉड मैक्स क्यू प्लस 1। पहले रेयर की वैल्यू निकालो। ये क्यों निकाल रहे हैं? पता करने के लिए कि फ्री एलिमेंट्स है या नहीं। तो इसको आप ऐसे देखिए, सी आपका रेयर फिलहाल 5 है, ठीक है, और मैक्स क्यू भी क्या है 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 मॉड गिव्स यू द रिमाइंडर वैल्यू, मॉड गिव्स यू द रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, तो रेयर अगर 5th है और मैक्स क्यू भी 5 है, 5 एलिमेंट्स का ही क्यू लेते हैं, तो दोनों का मॉड क्या निकलता है 0। तो फिर 0 + 1, नया रेयर है 0 + 1। अब रेयर अगर फ्रंट है इस टाइम पे 1 ही पे फ्रंट भी है और 1 पे ही रेयर आ रहा है, दैट मीन्स क्यू ओवरफ्लो हो रहा है, अदरवाइज क्यू के रेयर में आइटम डालिए। इसका डिस्क्रिप्शन आई विल गिव यू नाउ बिलो दिस, ये मॉड ऑपरेशन का क्या मीनिंग है, बट फिर से वर्बली मैं एक बार और समझाती हूँ, उसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ। देखिए, ये एक क्यू का 5 लोकेशन का क्यू है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उन्होंने बोला रेयर 5 ही है, समझो रेयर मतलब 5 जो होगा 20 एलिमेंट होगा, या एक अल्फ़ाबेट डाल देते हैं बी। ठीक है, बी जो है वो 5th लोकेशन पे है, और एक्चुअली बाकी सारे खाली हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा ना कि सामने के एम्प्टी है लोकेशन या नहीं? तो सिंपल है, पहले तो उसने कहा कि रेयर और मैक्स क्यू का मॉड निकालिए। मैक्स क्यू भी 5 है, मैक्सिमम कैपेसिटी 5 है, रेयर भी 5 है। मॉड ऑपरेशन इज यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑपरेशन, मतलब उसे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर वैल्यू है वो रिजल्ट करता है हमारा मॉड्यूलस। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर वैल्यू 0, तो 0 आएगा। 0 + 1 1 होता है, तो रियर अब 1 है, ऑब्वियस है सर्कुलर क्यू है तो रियर अब 1 है। बट नेक्स्ट लाइन में बोला गया कि रियर और फ्रंट सेम है क्या? क्या ये फ्रंट है? नहीं, फ्रंट तो ये था, तो यहाँ पे इफ़ रेयर इज़ फ्रंट ये लिखना है, बट अगर रेयर फ्रंट नहीं है तो यहाँ पे इंसर्शन कर दो, क्यू ऑफ रेयर में आइटम को डाल दो। अब मान लेते हैं कि पूरे एलिमेंट्स थे उसमें A C E F B। ठीक है, अभी भी सिचुएशन सेम है, रेयर क्या है 5 मॉड 5 0 निकलेगा, 0 + 1 नया रेयर 1 है, बट फ्रंट क्या था? ये था, A फ्रंट था, ये रेयर था। इस बार रेयर और फ्रंट सेम हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो ओवरफ्लो। मान लो ये नहीं होता, ये खाली होता, ये फ्रंट होता, तो क्या होता? रेयर एम्प्टी मिलता। अगर ये फ्रंट नहीं होता, ये फ्रंट होता तो भी रेयर एम्प्टी मिलता, ये फ्रंट होता तो भी रेयर एम्प्टी मिलता, बट फ्रंट 1 ही है इसलिए ओवरफ्लो। अभी भी नहीं एक्सप्लेनेशन मिला, तो बट ये आगे का देख लीजिए। इफ़ रेयर और फ्रंट सेम है तो ओवरफ्लो बोल दीजिए, एल्स के ओके रेयर में आइटम डालिए, एंड इफ रिटर्न। इट्स वेरी सिंपल एल्गोरिथम, बट इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट जल्दी से चेक करेंगे। पहला डेफिनेशन था
कि फ्रंट इज नल, फ्रंट को 1 बनाओ, रेयर को भी 1 बनाओ और क्यू के रेयर में आइटम डालो, ठीक है। Assume the maximum limit of circular queue is 5 and one would like to insert an element, say 5. Find the position of item in a following queue. Maximum capacity 5 है और 5th पोजीशन तक एलिमेंट इंसर्टेड है, यानी रेयर 5 ही है। अब आपको इसमें क्या करना है, एक और एक एलिमेंट f को इंसर्ट करना है। फ्रंट इज 4, रेयर इज 5, तो कैसे करना है, रेयर मॉड मैक्स क्यू निकालो, कितना निकलेगा 0। रेयर मॉड मैक्स क्यू 0 निकलेगा, उसमें 1 ऐड करो और वो बन गया आपका नया रेयर। तो अब नया रेयर 1 है, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइटम कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला रेयर मॉड मैक्स क्यू प्लस 1 दैट इज 1, न्यू रेयर इज 1। मॉड ऑपरेशन गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर डिविजन। तो नया एलिमेंट, और अभी फ्रंट क्या था, d था, फ्रंट इज 4 नॉट 1, तो फ्रंट वो जो कंडीशन थी कि फ्रंट और रेयर सेम है तो ओवरफ्लो लिखो, वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। फ्रंट तो 4 है, रेयर 1 है, तो इन दैट केस इंसर्शन हो जाएगा, बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो क्यू के रेयर में आइटम डाल दीजिए, ठीक है। पर ये केस, इस केस में ना फ्रंट और रेयर सेम होने वाले हैं। अज्यूम द मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्यू इज 5 एंड वन वुड लाइक टू इंसर्ट एन आइटम एफ। अब आप मैक्सिमम, फिर से वही कंडीशन है कि मैक्सिमम कैपेसिटी 5 है और आप एक एफ को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फाइंड द पोजिशन ऑफ आइटम इन द फॉलोइंग क्यू। फ्रंट 4 है, रेयर 3 है, फ्रंट 4 है, रेयर 3 है, यानी ये फ्रंट है और ये सर्कुलर क्यू होके ये रेयर आ चुका है सर्कुलर क्यू की वजह से, ठीक है। अब आप एक नया आइटम इंसर्ट करना चाहते हो। पोजीशन ऑफ आइटम कैन बी फाउंड